नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 57 मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में भारत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, जहां पर शिरकत करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान का बिना नाम लिए ही मुस्लिमों के सामने जमकर बखिया उधेड़ी। आतंकवाद को पालने वालों की तरफ इशारा करते हुए जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। Then by his creative power he made all mortal beings. From that one light the entire world came into being. So who is good and who is bad? Your Highness and Excellencies, India has always embraced and found it easy to embrace pluralism since it is embedded in the oldest Sanskrit religious text, the Rig Veda, and I quote, Ekam Sadvipra Bahuda Vadanti, which means God is one, but learned men describe him in many ways. Our great philosopher Swami Vivekananda said that this phrase from the Rig Veda has given the theme to all subsequent thoughts to India, and one that will be the theme of the whole world of religions. Your Highness and Excellencies, this is not a clash of civilizations or cultures, but a contest of ideas and ideals. As Prime Minister Shri Narendra Modi has often said, it is a struggle between the values of humanism and the forces of inhumanity. ऋग्वेद का हवाला देते हुए स्वराज ने कहा कि भगवान एक है और सभी धर्मों का मतलब है शांति। बता दें कि ओआईसी की मीटिंग में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर न्योता भेजा गया था। ओआईसी के मंच से बोलते हुए सुषमा ने दहाड़ लगाई और कहा कि दुनिया आज आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है और सभी को एक साथ मिलकर मानवता के दुश्मन आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत आतंकवाद से लड़ रहा है, आतंकवाद का दंश बढ़ रहा है और दायरा भी बढ़ रहा है। Your Highness and Excellencies, if we want to save the humanity, then we must tell the states who provide shelter and funding to the terrorists to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop providing funding and shelter to the terror organizations based in that country. At the same time, I would like to say that this menace cannot be fought only through military, intelligence or diplomatic means. It is also a battle that must be won through the strength of our values and the real message of religions. This is a task that states, societies, sages, scholars, spiritual leaders and families must pursue through personal contacts and on social media. And for this, faiths must speak to faiths. Cultures must engage with cultures. Communities must build bridges, not erect walls. The youth must shape the future, not destroy lives. विदेश मंत्री ने कहा कि आज आतंकवाद और अतिवाद एक नए स्तर पर पहुंच गया है। कुछ देश आतंकवाद को संरक्षण और पनाह दे रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। आतंकी संगठनों की फंडिंग रुकनी चाहिए। संस्कृतियों का संस्कृतियों से समागम होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ टकराव नहीं है। Your Highness and Excellencies, I am particularly pleased to participate in a conference whose theme is a roadmap for prosperity and development. However, I may enter a caveat. The young are not going to be content with only road maps. They want roads as well. They also want them to be built fast. It must be our common objective to ensure that we leave them a world that is infinitely better in terms of equitable economic growth and social justice than the one we inherited. That is the mission which has brought us together in Abu Dhabi, a city that has matured into a landmark of Asia and the world. Your Highness and Excellencies, India is the world's third largest economy on purchasing power parity and is the fastest growing one. We are prepared to share our market, resources, opportunities and skills with our partners. We will do what we can within our capacity to ensure that the path to development remains open to all and the global trade regime is open, stable and fair. Your Highness and Excellencies, at 50, Organization of Islamic States is making a new beginning. The choices you make
the directions you set will have a profound impact on humanity. The OIC has a huge responsibility and a great opportunity to lift humanity to a higher level of peace and prosperity, and to make this planet a better place, not just for your people, but for the rest of the world. And we will work with you to spread the true meaning and mission of all religions, promote respect for and between faiths, counter the language of hate with a message of harmony, advocate moderation over extremism and pluralism over exclusion, inspire youth to the path of service than of destruction, build bridge of understanding and reduce barriers across cultures and religions. Your Highness and Excellencies, the late President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, popularly referred to as the People's President, said, and I quote, "Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world." Your Highness and Excellencies, I come from the land of Mahatma Gandhi, where every prayer ends with the call for Shanti, that is, peace for all. I convey our best wishes, our support, and our solidarity in your quest for stability, peace, harmony, economic growth, and prosperity for your people and the world. धर्म को शांति का पर्याय बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह इस्लाम का मतलब शांति है, अल्लाह के 99 नामों में से किसी भी नाम का अर्थ हिंसा नहीं है, उसी तरह हर धर्म शांति के लिए है। भारत का गौरवशाली संस्कृति का हवाला देते हुए सुषमा ने कहा कि भारत के लिए बहुलता को अपनाना हमेशा से आसान रहा है, क्योंकि ये संस्कृति के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी है और मैं वहां से उद्धरण ले रही हूँ। एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, मतलब भगवान एक है, लेकिन विद्वान लोग अलग अलग तरह से उनका वर्णन करते हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद भी ओआईसी ने भारत को भेजा न्योता रद्द नहीं किया। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान ने ओआईसी से भारत को दिए न्योते को रद्द करने की मांग की थी। ये मांग खारिज होने से तिलमिलाए पाकिस्तान ने आखिरकार ओआईसी बैठक का बहिष्कार कर दिया है। भारत को न्योता रद्द करने के लिए पाकिस्तान किस हद तक ओआईसी के सामने गिड़गिड़ाया, ये खुद उनके विदेश मंत्री के संसद में दिए बयान से जाहिर होता है। पाक संसद में बोलते हुए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कैसे वो यूएई के क्राउन प्रिंस को उनके पिता के साथ संबंधों का वास्ता देकर गुरुवार रात तक मनाते रहे, लेकिन उन्होंने पाक की एक न सुनी। जब मैंने राब्ता किया तुर्क वजीर खारजा से, तो वो भी लाइल्म थे, ईरान भी इस चीज से, यानी कि इस पर कोई कंसल्टेशन और जो एक प्रोसीजर होते हैं उसको मलूज़ खातिर न रखते हुए हमारे दोस्त ने, और दरीना दोस्त है अरब इमारात, हमारे बहुत से पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, रोज़गार करते हैं, और उन्होंने हमें मुश्किल वक्तों में हमारा साथ भी दिया है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। उन्होंने बहसियत मेज़बान के एक इन्विटेशन दिया। मैंने जनाब हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला साहब से इस मौजू पर 2 मरतबा गुफ्तगू की टेलीफोन पर। मैंने उनकी खिदमत में तारीखी हवाले दिए, मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया, और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो इस फैसले पर अगर हो सके तो नजरसानी फरमाए। उन्होंने जो कहा, मैं क्योंकि सबसे बड़ा ऑगस्ट हाउस है, मैं इन्हें मुतले करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब हम इन्विटेशन एक्सटेंड कर रहे थे तो पुलवामा का वाकया रूनुमा नहीं हुआ था। अगर ये वाकया हो चुका होता तो मैं बिल्कुल इस पर मेरी सोच कुछ और होती, लेकिन हम एक्सटेंशन इन्विटेशन एक्सटेंड कर चुके हैं, तो अब मेरे लिए
इस पर ज़रा दिक्कत होगी, लेकिन मैं इस पर फिर भी कंसल्टेशंस करता हूं। जनाब वाला, जब पुलवामा के वाक़े के बाद जब पाकिस्तान पर जारहियत होती है 26 तारीख को, तो मेरी उनसे दोबारा बात होती है और मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि अब हालात कदरे मजीद बदल चुके हैं और मेरी गुजारिश होगी कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात, जो आपके लिए बहुत कीमती हैं और आपके वालिद गिरामी की पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत की तारीख है, उसको सामने रखते हुए आप इस पर अब नजरसानी कीजिए या इस इजलास को पोस्टपोन कर दीजिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि OIC है क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC मुस्लिम देशों का संगठन है। इसमें 4 महादेशों के 57 देश इसके सदस्य हैं। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। 25 सितंबर 1969 को मोरक्को की राजधानी रबात में मुस्लिम देशों का एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में संगठन की स्थापना का फैसला किया गया। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। इसके महासचिव यूसुफ बिन अहमद अल उसैमीन हैं। जो भी हो, 57 देशों के मुस्लिम संगठनों ने जो सम्मान भारत को दिया और जिस तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का स्वागत हुआ है, इससे भारत की मुस्लिम देशों में बढ़ती साख का नतीजा है। विश्व पटल पर भारत की धमक को भी दर्शाता है। जो भी हो, आने वाले दिनों में भारत का रुतबा और बढ़ता ही जाएगा और तिरंगा दुनिया में एक अलग मकाम हासिल करेगा।